Good morning, everyone. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. My name is Gaurav, and you have seen me here if you have been here. I'm your teacher and mentor in this journey, and I have covered UGC NET Paper 2 Commerce, Paper 1, and we are starting a new series where we are helping you to prepare for your examination in 2023, right? So we are targeting 2023 examination UGC NET and JRF. Okay, and one of the most important thing that you have to remember that every student who is preparing for UGC NET has to have in their mind that they have to prepare for paper 1 and paper 1 unit 2, that is titled research aptitude. So in this video we will be talking about research aptitude, why it is important, why it is relevant for you all, right? So very important unit, if you ask me, very important. Why? Firstly, not only about marks, right? So it's not only about marks that you have to score, but the knowledge that helps you become a good researcher, right? But the knowledge that comes with it, right? So these are the things that you have to know, because in future you will be pursuing your PhD. When you clear your UGC NET or JRF, you will be enrolling into PhD program. So research is an area which is very important area, and you have to prepare your research papers, and only then you can get through it for your PhD, right? So research proposal is the first basic step, and all the knowledge that people get about research is from this particular unit, right? So this is very important, not only about marks, but if you just want to know about how much it is relevant, how many questions do come from this unit, I've already made a video particularly explaining what are the important questions and how you can expect the questions, right? So you can check that out on the Talent Blazer YouTube channel, that is also available. You will be explained how many marks and how many important questions that you can expect from this unit. In today's class we will be talking about the important topic, right, which is definitely going to appear in your examination. But if you want to know the question scheme, marking scheme, and how many questions you can expect, then you can definitely go through that video as well, right? So as I said, this is very important for everyone, not only for your learning purpose, not only for you to score in the examination, but also how you can become a better researcher. What are the things that you have to keep in mind while doing your research work, right? So these are the few important things, important point that you have to learn through this unit, and that makes this unit very relevant and very important, not only for your present but your future perspective as well, right? So let me start with the very important topic, that is sampling. सो वाइल रिसर्चिंग, जब भी आप रिसर्च करते हो तब आपने कभी सोचा है कि जो रिसर्च कंडक्ट करी जाती है दैट इज नॉट फॉर द होल पॉपुलेशन. वाई? फर्स्टली इट इज नॉट फीजिबल. एक चीज है कि फीजिबल नहीं है. अगर आप एक चीज सोचो, लेट सपोज यू आर कमिंग आउट विद अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, तो आप सारी पॉपुलेशन से, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी ग्लोबली, सबसे एक एक सैंपल दोगे, सबको एक एक सैंपल प्रोवाइड करोगे, एंड देन यू विल आस्क देयर ओपिनियंस, you will never be able to finish the process. So that is not feasible and that cost too much, right? So costing भी होती है. So इसका एक एग्जाम्पल जैसे in COVID pandemic, right? So while we are talking about vaccine, even vaccine firstly was tested on few people, right? So एक sample population पे test करा गया था, then we were able to notice that okay, this is effective, and then it was passed on to the general population. तो sampling में simple इसका फंडा क्या है कि आप पूरी population में हर किसी का ओपिनियन, हर किसी से ये नहीं पूछ सकते कि वेदर यू लाइक दिस प्रोडक्ट और वेदर, और आप उनको ट्राई भी नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ द नंबर, राइट? सो द पॉपुलेशन इज लार्ज and the sample survey will always be
लेसर देन द पॉपुलेशन, सो दैट इज गिवन। अगर आप जब भी कुछ भी सैंपल करते हो अपने फॉर योर रिसर्च पेपर इन फ्यूचर, तो आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में कि आपका पॉपुलेशन साइज तो बहुत ज्यादा है, बट वाइल यू आर कंडक्टिंग योर सैंपल, योर सर्वे, दैट विल बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, राइट? So this is a very important topic for your examination as well. Now we'll talk about sampling, the type of sampling techniques, right? So there are two. Firstly, the main ones, right? One is the probability and another one is non-probability technique. So probability technique, what does it mean? So in probability technique, every sample has a fair chance, right? यहाँ पे सबके पास एक fair chance है. In this, the researcher has a, इसमें अगर हम रिसर्चर की बात करेंगे, has a pre-decided mindset. तो इसमें एक प्री डिसाइडेड माइंडसेट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। अगर हम उसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स आपके दोनों आती हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का क्या मतलब होता है, जिसमें हर एक सैंपल को एक फेयर चांस मिले। अगर जैसे हम यहाँ पे 12 लोगों की बात करें, प्रोबेबिलिटी टेक्निक में सबके पास एक फेयर चांस होगा सैंपल में इंक्लूड होने का। बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी, इफ आई एम अ रिसर्चर एंड माई फेवरेट कलर इज रेड, अगर मेरा रेड फेवरेट कलर है, देन आई विल पिक ओनली दोज विद रेड कलर्स, राइट? तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, राइट? तो उनमें से आई विल पिक 3 और 4, so that makes them 1, 3, 5, 9 not eligible. तो यहाँ पे वो नॉन प्रोबेबिलिटी में ये मेरे ऊपर है रिसर्चर के, यहाँ पे सबके पास फेयर चांस नहीं है। बट अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में, यहाँ पे सबके पास फेयर चांस है। तो हम सारी टेक्निक्स वन बाय वन पढ़ेंगे एंड मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली पे अटेंशन टू इट, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ फिक्स प्रोबेबिलिस्टिक चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल। जैसे मैंने आपको बताया ही कि हर एक एलिमेंट के पॉपुलेशन के पास सबके पास एक रियलिस्टिक चांस है टू बी सिलेक्टेड इनटू द सैंपल, राइट? एक सर्वे में भी सिलेक्ट होने के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है। तो ये आपको एक डेफिनेशन और ये डिफरेंस में हमेशा याद रखना है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हमने ये पढ़ा भी है इन आर स्कूल, राइट, अबाउट मैथ्स। तो प्रोबेबिलिटी में हम बोलते हैं ना सबके पास, दोनों के पास चांस है, चांसेस, राइट? we do remember by this chance, right? Probability means that you have a chance, right? So just add on the word fair, so everyone has a fair chance in this, so that makes it a probability sampling, that every element of the population has a fair chance to be selected, right? Probability sampling को further divide करा, जो हमने पीछे देखा ही था 4 पार्ट्स में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो a probability technique is in which each element has a known and equal probability of selection. तो एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है जिसमें हर एक एलिमेंट का नोन और इक्वल प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। तो अब ड्रॉ करना होता है सिंपल रैंडम सैंपल। द रिसर्चर फर्स्ट कंपाइल्स अ सैम्पलिंग फ्रेम, इन ईच एलिमेंट इज असाइन्ड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब जब हम सैम्पलिंग करें कैसे, राइट? अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, हम किसी को भी कोई नंबर तो असाइन करेंगे, राइट? इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स सपोज आई वांट टू take a sample of people age from 20 to 40 years, right? 20 to 40 years के लोगों के बीच में सैंपल मेरे को लेना है, तो मैं सबको एक नंबरिंग दे दूंगा, जैसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन व्हाइल आई एम टॉकिंग टू देम, दैट आई एम व्हेन आई डू आस्क देयर एज, जब मैं उनकी एज पूछता हूँ तो उनको मैं एक नंबर दे देता हूँ कि दिस गाय हैज बीन गिवन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि एक मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज सारे एलिमेंट अलग है, राइट? हर एक एलिमेंट अलग है, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, जिससे कल को जब मैं एक सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, जब मैं सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर मेरे को ये पता हो कि हाँ, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस पर्सन, नंबर 1 इज दिस पर्सन, नंबर 3 इज दिस पर्सन, राइट? लेट्स सपोज A B C, राइट? सो मैंने A को एक नंबर दे दिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज 1, B को दिया 2 एंड C को दिया 3। तो प्रोबेबिलिटी टेक्निक में क्या होता है, ईच एलिमेंट का सबका ही नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होता है। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, रिसर्चर पहले एक सैम्पलिंग फ्रेम में सारे एलिमेंट्स को रख लेता है
और फिर उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है। और कल को जब वो सैंपल ड्रॉ करता है सो दे आस्क कि यू नो यू हैव बीन सिलेक्टेड क्या, उनसे सर्वे लिया जाता है। तो वो चीज़ें होती है, जैसे मैंने 1 3 5 7 8 9 से पिक कर लिया, सो आई want to contact them in future, so I must be knowing the 1 number was assigned to this person, 3 नंबर इसको असाइन करा था, 5 नंबर इसको असाइन करा था। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पल, राइट। बहुत बेसिक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है सिंपल रैंडम सैम्पल, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ वी टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? In systematic sample, the sample is chosen by selecting a random starting point and then selecting every nth element in success, right? तो अब let's suppose एक sample draw करा है, एक sample draw करा है of 1000 people, right? अब इसमें 1000 लोग हैं। अब मैं systematic sampling कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा favorite number है let's suppose 23, right? अब मेरे को 23 रिलेटेड ही नंबर लोग चाहिए, सो नेक्स्ट वन आई विल पिक 123, देन द नेक्स्ट वन आई विल पिक इज 223, देन द नेक्स्ट वन दैट आई विल पिक इज 323, 423 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा सिस्टमैटिक सैंपल में कि मैंने एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट लेने से क्या हुआ, मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद मैं कोई भी nth एलिमेंट ले रहा हूं, तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं इसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि आप एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हो। दो इफ यू वांट टू गिव अ एक्सप्लेनेशन दैट ओके 23 इज माय फेवरेट नंबर, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट अप, तो दैट इज दैट इज फेयर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। बट उसके बाद जो भी आप nth एलिमेंट ले रहे हो, तो इसमें आप एक रैंडम सा ही स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो कि 23 ले लिया, 25 ले लिया, 27 ले लिया, 21 ले लिया, तो इसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं कि एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, उसके बाद द फॉलो ऑन द nth एलिमेंट हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे 23, 123, 223, तो इट्स जस्ट रैंडम, कोई ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को लगता है कि चलो मेरा 23 फेवरेट नंबर है, दैट इज व्हाई आई एम पिकिंग दिस अप, ओके। सो यू कैन पिक एनी रैंडम पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। आई होप एवरीवन हु इज वॉचिंग द वीडियो इज एबल टू कनेक्ट, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही तो डू डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड और लाइक करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। नाउ मूविंग अपॉन टू द थर्ड टेक्निक। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, काफी, एक तो इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल क्या मतलब हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट नाम हो जाता है तो लोगों को वहीं पे कंफ्यूजन होने लगती है, बट इसको हम थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। तो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हेट्रोजीनियस ग्रुप, और उससे एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करा जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? पहले विल टॉक अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो दो इवेंट एक साथ कभी नहीं होते, राइट। आपको याद होगा कॉइन का एग्जाम्पल, कॉइन्स में दो चीजें होती है, हेड और टेल। अगर आप कॉइन फ्लिप करोगे तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या पता 2 बार हेड आ जाए या 2 बार टेल्स आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हेड और टेल एक साथ आ जाए, राइट। सिक्का ऐसा नहीं कि खड़ा हो जाएगा, व्हेन यू आर फ्लिपिंग द कॉइन चांसेस आर वेदर यू विल गेट हेड्स और यू विल गेट टेल, राइट। तो ये जो दोनों इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। तो हमने एक डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और उनमें से लेट्स सपोज ये एक ग्रुप है, राइट, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में से हमने इस पर्सन को पिक कर लिया, इस पर्सन को पिक कर लिया, एक ये ग्रुप है जिसमें से हमने इस पर्सन को पिक कर लिया। तो ये हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है कि ना ही वो सिमिलर ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि सिमिलर ट्रेड्स के साथ आते हैं वो लोग, हमने ऐसे ही रैंडम ड्रॉ कर लिया कि ये 10 ईयर ओल्ड है, 20 ईयर ओल्ड है, 30 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड है, तो हमने एक ऐसे ही ग्रुप बना दिया, उसमें से भी पिक्ड अप 10 और 30 ईयर। सो ये बिल्कुल एक स्ट्राटा बनाया जाता है, एक ग्रुप जिसको हम स्ट्राटा बोलते हैं, उसमें से हम भी रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट दोनों एक साथ नहीं हो सकते हेट्रोजीनियस ग्रुप, तो वो सिमिलर ट्रेड्स नहीं दिखाते, एक जैसे नहीं होते, ठीक है।
और फिर उनमें से रैंडम सैम्पलिंग ड्रॉ करा जाता है, राइट। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग रख लिए, हमने रैंडमली रखे 10, 20, 30, 40 सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, एंड देन वी आर पिकिंग अप कि हमने 10 ईयर ओल्ड ले लिया, 30 ईयर ओल्ड ले लिया, राइट। तो अब आई होप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आ गया और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, और इसको हम स्ट्रैटिफाई रैंडम सैंपल क्यों बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्लस्टर एरिया सैंपल, अब ये इसका ऑपोजिट, स्ट्रैटिफाइड का ऑपोजिट है क्लस्टर। इसमें क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में जो होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं उसमें डिवाइड करी जाती है। अब इसमें रिसर्चर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, अब इसमें वो क्या करता है, वो एक जैसे सिमिलर लोगों को ही ले लेता है। लेट सपोज इफ आई एम अ डॉक्टर, इफ आई हैव टू टेक एन अकाउंट, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अकाउंट में लेना है द शुगर पेशेंट्स की, मेरे को देखना है कि शुगर पेशेंट्स एक साथ, मैंने एक कैटेगरी ले ली शुगर पेशेंट्स की। अब शुगर कैन डायबिटीज, राइट, बेसिकली डायबिटीज। अब डायबिटीज कैन हैपन टू एनी एज ग्रुप, ऐसा कुछ है नहीं कि ये इट इज ओनली रिलेटेबल टू ओल्डर एज पीपल, इट कैन हैपन टू 30 ईयर ओल्ड, इट कैन हैपन टू अ 40 ईयर ओल्ड, राइट। सो ऐसा नहीं है कि इट कैन ओनली हैपन टू द एल्डरली ग्रुप। बट इसमें मैंने क्या करा, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे, इनका ट्रेड क्या मिक्स कर रहा है कि ये दे आर ऑल डायबिटीज पेशेंट। सो इफ आई एम अ डॉक्टर, सो यू नो आई कैन इजिली आई कैन पिक देम एनी वन। तो हर कोई एक शुगर पेशेंट ही होगा, अगर मैं इनमें से किसी को भी पिक करता हूँ तो एनी वन विल बी अ शुगर पेशेंट, बिकॉज मैंने वो ब्लॉक ही ऐसा बना है। फिर उसके ऊपर आई कैन आस्क देम why like what are the reason do you think this happened, right? What are your eating habits, what is your lifestyle? So we can easily ask 30-year-old and make a comparison with a 40-year-old and then with a 50-year-old. So but the basic idea is that it is divided into homogeneous group. Homogeneous जो एक जैसे ट्रेड दिखाए, तो एक जैसे ट्रेड दिखाए दैट ऑल ऑफ देम आर डायबिटीज पेशेंट्स, राइट, गिवन देयर एज डिफरेंट, उनकी एज सबकी डिफरेंट है, राइट। तो ये चीज एक डिफरेंट है, एक डिफरेंस है। क्लस्टर एरिया इज बेसिकली एन ऑपोजिट ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल वेयर वी आर पिकिंग अप हेटेरोजेनियस ग्रुप पीपल, इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, एनी place. But while we are talking about cluster area, we are talking about they have something in common, they are homogeneous, they are being showing some mutual trait, तो उनका एक trait है जो दिखता है, ठीक है। So this is all about your probability sampling, तो ये हमारा probability sampling हो गया, ठीक है। Now we'll move to the next one, non probability sampling। ये हमारा सेकेंड और मेजर पार्ट है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपके दो पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब फर्स्टली आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग क्या है, क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिटी चाहिए कि होता क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नाम से ही अगर आपको समझ में आ रहा है दैट नॉट एवरीवन हैज अ फेयर चांस, नॉट एवरीवन हैज अ फेयर चांस इन दिस वन, राइट। So this depends upon the judgment, right? This rather rely on the personal judgment of the researcher. तो यहाँ पे researcher का जो मन करे, he can pick, he or she can pick anyone, ठीक है। तो यहाँ पे sampling techniques that do not use chance selection, यहाँ पे chance की बात नहीं हो रही। So these are the words that makes the difference, right? That is why I was emphasizing on the word chance there. तो अगर आप थोड़ा भी वीडियो ध्यान से देख रहे हो, थोड़ा भी अगर आप सुन के समझ रहे हो, so these are all those things that makes a difference, right? That do not use chance selection procedure but rather rely on the personal judgment of the researcher, right? तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल, यहाँ पे कि ये पर्सनल जजमेंट ऑफ द रिसर्चर पे जा रहे हैं। तो इसके भी 4 टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे क्या क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में। इसमें भी 4 टेक्निक्स है, क्या क्या आती है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस गारंटीड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से। ये जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और ये ना कि आपके सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में व्हाइल यू हैव प्रिपेयर्ड योर रिसर्च प्रपोजल, तब भी आपको सैम्पलिंग के बेस पे इजीली क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो दैट
मेक्स अस स्टेक्स हायर, इसको इस यूनिट को काफी एम्फसाइज करना है, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? तो कन्वीनियंस ना मतलब कन्वीनियंस मतलब आसानी है, आसानी की बात कर रहे हैं तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सैंपल ऑफ कन्वीनियंट एलिमेंट्स। The selection of sampling unit is left primarily to the interviewer, जो उसकी मर्जी है वैसे वो सिलेक्ट कर सकता है। Often participants are selected because they happen to be at the right place, right? तो let's suppose a bank employee or an employee from any organization goes to a survey। तो अब वहां पे वो सर्वे के लिए जा रहा है, सैंपल करने जा रहा है। सो व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू ईच हाउस होल्ड, रिंग देयर बेल, और जो वहां पे उन्हें मिल गया उनसे उन्होंने बात कर ली। तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर इंसान को ही चेस करेंगे, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन और अ पर्सन, राइट। सो दिस इज वेयर दे आर टॉकिंग दे आर लुकिंग आउट फॉर देयर कन्वीनियंस। लेट्स सपोज इफ अ बैंक एम्प्लॉय, अगर आपने देखो एक बैंक एम्प्लॉय होता है एंड द बैंक गिव देम टारगेट्स। एक बैंक एम्प्लॉय को टारगेट्स देती है दैट यू हैव टू गेट दिस नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स सोल्ड और एनी एक्टिविटी। तो उनका क्या करते हैं, सो दे गो टू देयर नियर बाय रेसिडेंट्स, बैंक एम्प्लॉय इन विच एवर एरिया और सेक्टर दे हैव देयर बैंक्स इन, जहाँ पे भी उनका बैंक है। तो वहाँ पे वो सबसे पहले नियर बाय एरिया में जाएंगे, दे विल गो टू एवरी ईच एंड हाउस डोर एंड देन for we'll talk to them, and then finally we'll tell them the advantages of having this bank card and making them their customer। तो वो चीजें होती है, but they are not chasing a particular group of people, right? तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हैं, जो भी आसपास है उनमें से पूछ लिया। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को ही देख रहे हैं कि अच्छा कि हाँ यार ये लोग हैं, इन्हीं लोगों को ही देखना है, इन्हीं लोगों से मिलना है, इन्हीं लोगों को पूछना है। नहीं, कहीं भी कुछ भी लोग मिल जाए दे आर डेफिनेटली हैप्पी, बस दे वांट टू एडवर्टाइज देयर अबाउट देयर बैंक, राइट। सो दे आर नॉट पर्टिकुलरली चेजिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आपके अपने सुविधाओं के हिसाब से, आपको असुविधा ना हो, आपको कोई इनकन्वीनियंस ना पहुंचे, राइट। ये फ्लो ऐसे है, राइट, ओके। दिस इज द फ्लो, हाउ द फ्लो गोस, ओके। नाउ द सेकेंड वन, जजमेंटल सैम्पलिंग। ऑल दीज पिक्चोरियल रेफरेंसेस जो आपको जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर, आपको हमेशा याद रहे। आपके सिर्फ ना ही आज ये वीडियो देखो, बट हाँ, जजमेंट की बात करें, जजमेंटल सैम्पलिंग, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ जजमेंट, राइट। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है इन विच एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, राइट। तो इसमें क्या है, while I continue the previous example, बैंक एम्प्लॉयज वाला ही एग्जाम्पल। तो बैंक एम्प्लॉयज लास्ट सैम्पलिंग में, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में, दे वर गोइंग टू देयर नियर बाय एरिया, बट अब उनके बॉस का ऑर्डर आया दैट यू गो टू अ reputed sector, reputed area where there are more businessmen families living in, या फिर काफी पोश एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा, if I'll say where the people with higher income are living, right। तो वहाँ पे एक जजमेंट है, वहाँ पे जजमेंट है उनके बॉस की। अगर आप यहाँ के इन लोगों के पास जाओगे तो दे आर डेफिनेटली मोर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू सेल आउट योर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, आपकी जजमेंट के ऊपर से सिलेक्ट करे जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग। द रिसर्चर exercising judgment or expertise chooses the element to be included in the sample because believe that they are representative of the population। तो उसको क्या है, एक जजमेंट सैम्पलिंग में एक रिसर्चर को क्या लगता है कि ये जो लोग हैं जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो मेरी जजमेंट है, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यही लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। तो ये हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग होती है। इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जजमेंट मेन वर्ड है, रिसर्चर का जजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या सबसे मेन वर्ड है, जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। दैट इज व्हाई दिस डायग्राम ऑफ अ जजमेंट बीइंग डन, तो जिससे आपको याद रहे, आपको एक कोहेरेंस बना रहे दिमाग में, द पिक्चर स्टेज लॉन्गर देन व्हाट यू हैव जस्ट रेड।
तो जो एक पिक्चोरियल रेफरेंस होता है दैट स्टेज लॉन्गर विद योर लॉन्गर टाइम, रिटेंशन टाइम ज्यादा होता है उसका. तो दिस इज जजमेंटल सैम्पलिंग while we are judging because we think that they are representative of the population. Now we will move to the third one, कोटा सैम्पलिंग. तो कोटा सैम्पलिंग क्या है? ये कोटा सैम्पलिंग होता है 2 स्टेजेस पे बेस्ड होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ परसेंटेज लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं. परसेंटेज लोगों को सिलेक्ट करके कोटा बोलते हो, राइट. हम अब इन्हीं कोटा में से ओके वी सिलेक्ट बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट. पॉपुलेशन परसेंटेज लोगों को सिलेक्ट करा जाता है, उसको हम एक कोटा बोल देते हैं, राइट. हम अब ये कोटा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो एक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है. तो एक कोटा हो सकता है फॉर एन एज ग्रुप के लोगों को सिलेक्ट करना है. मेरे को सिलेक्ट करना है 20 to 25 ईयर ओल्ड्स को, राइट. आई एम कमिंग अप विद अ gaming module, I am coming with a gaming device in future, so I want to particularly target this age group because either some, like most of them are in the college or they are starting with their working age group, right. अब वो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर दे आर इन देयर कॉलेज. तो मेरे को इन लोगों से ही पूछना है व्हाट डज गेमिंग डिवाइस मीन्स टू देम. तो इसमें मैंने एक कोटा बना लिया, परसेंटेज लोगों को सिलेक्ट कर लिया. इनमें से आई एम रैंडमली ड्रॉइंग बेस्ड अपॉन माई कन्वीनियंस दोज हु आर लिविंग इन माई कॉलोनी, माई नियर बाय स्टेट, आई एम पिकिंग देम. बट हाँ, कोटा क्या है 20 to 25 ईयर ओल्ड, उनमें से मैं कन्वीनियंस और जजमेंट बेस पे आई एम सिलेक्टिंग देम. कोटा सैम्पलिंग क्या है? 2 स्टेज प्रोसेस है. इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, कंसिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रोल कैटेगरीज और कोटास ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स. ये एक फर्स्ट स्टेज है, जैसे मैंने आपको वही ऊपर एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड क्या है, सैंपल एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट. तो कन्वीनियंस या जजमेंट के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. नाउ स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक टर्म है. अगर अब देखो बाकी सारी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है, यू कैन मेक अ गेस. कोटा सैम्पलिंग, ओके ठीक है, यू आर हियरिंग द नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर आपने थोड़ा सा भी कोटा से रिलेटेड क्या होता है कोटा उसके बारे में कुछ भी पता है, सो इवन देन यू कैन मेक अ गेस, राइट. स्नोबॉल सैम्पलिंग, अब इसमें क्या है, ये होता क्या है? अब ये लोगों के लिए एक तरीके से जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं सुना, उनके लिए यहाँ पे मुश्किलें आ जाती है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, क्या इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट है बाकी सारी सैम्पलिंग टेक्निक से जो हमने अभी अभी सारी कवर करी. कोटा सैम्पलिंग होगी हमारी, जजमेंटल सैम्पलिंग होगी हमारी, और हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो थी सबसे ईजी, अगर इसको मेरे को रैंक करना हो तो सबसे ईजी थी हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और इसके नाम से ही पता चलता है कि दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वन. अब सेकेंड जो हमारी थी जजमेंटल, थोड़ा कि हमें जजमेंटल है, जज करते हैं दैट एवरीवन इज, तो उस पर हमने जजमेंटल सैम्पलिंग कर ली. थर्ड वन हमारी क्या थी, कोटा, कि हमने एक कोटा बनाया, एक पॉपुलेशन में से कुछ परसेंटेज लोगों को सिलेक्ट करा, और देन वी आर डूइंग अपॉन हमारी कन्वीनियंस या जजमेंट सैम्पलिंग. वो हमारा थर्ड वन था. लास्ट वन जो हमारा था, फोर्थ वन, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो इसमें अब क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है. तो मेजर रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स सब मैं बताऊंगा एक एक करके कि क्या है, व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड पार्टिसिपेंट्स, राइट. मेजर रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ओके. तो अब इसमें ये है, गिव द रिसर्चर्स अ स्ट्रैटेजी यूज टू गैदर अ सैंपल फॉर अ रिसर्च स्टडी. तो हमें सैंपल ही बनाना है, हर में एक सैंपलिंग ही हो रही है, सैंपल ही बनाना है. इन विच स्टडी पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज, राइट, मैं एक डॉक्टर हूं, नया डॉक्टर हूं, कहीं किसी टाउन में नया आया हूं, ओके. एंड आई एम एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग डायबिटीज पेशेंट. सो डायबिटीज पेशेंट्स को आई एम एक्सपर्ट इन हैंडलिंग. सो
a patient name X came to my clinic. पेशेंट नेम एक्स केम टू माई क्लिनिक, वो मेरे क्लिनिक आए, मैंने उनको मेडिकेशन दी एंड देन ही सॉ सम इम्प्रूवमेंट इन हिज शुगर लेवल्स एंड ही वाज वेरी सैटिस्फाइड विद मी. सो मिस्टर एक्स रिकमेंडेड मी टू हिज फ्रेंड. वहां पे मिस्टर एक्स ने रिकमेंड करा मेरे को अपने किसी फ्रेंड को जो भी डायबिटीज से सफर करे, लेट सपोज मिस्टर वाई, ठीक है. एंड देन वाई रेफर टू मिस्टर जेड एंड दे रेफर टू देयर ग्रुप, देयर फैमिली, रिलेटिव्स एंड नेबरहुड. तो ये सबको इन्होंने क्या करा, रेफर करा, ठीक है. तो मेरा स्टार्ट कहां से होता है, मिस्टर एक्स से, दैट ही वाज अ पेशेंट दैट केम टू मी एंड आई गेव हिम मेडिकेशन एंड ही वाज वेरी मच सैटिस्फाइड विद हिज एक्सपीरियंस विद मी. नाउ व्हाट हैपेंड, he actually referred to his friend, one of the friend who was also suffering from diabetes, and then he came to me, he also witnessed a change, and then Mr. Y referred to his friend Mr. Z, and then they refer to their group, their family, to their relatives and to the whole neighborhood. तो अब क्या हुआ, स्ट्रैटेजी यूज करी. यहाँ पे सैंपल कैसे ड्रॉ करा जाता है, जिसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिन भी पार्टिसिपेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, वो रिसर्चर को रेफरल्स देते हैं टू द अदर इंडिविजुअल. तो एक स्नोबॉल जो होती है ना, स्नोबॉल पहले इतनी छोटी सी होती है, बट जब वो डाउन द रेल जाती रहती है तो वो बड़ी होती जाती है, राइट. स्नोबॉल बहुत बड़ी होती है, जैसे वो माउंटेन पे गिरती है, छोटी 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 बहुत बढ़ती जाती है, राइट. स्नोबॉल ऐसे बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है साइज में जब व्हेन इट रोल डाउन टू द माउंटेन. तो ऐसे ही हमारे स्टडी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रिसर्चर को रेफरल देते हैं टू द अदर इंडिविजुअल्स, रादर देन आई एम गोइंग टू देम, वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट इज गिविंग अ रेफरल टू द अदर वन, राइट. तो जो फिट करता है स्टडी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको स्टडी क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा ये है, तो वैसे ही स्टडी क्राइटेरिया को जो फिट करते हैं वो रेफर करता है अदर इंडिविजुअल्स को. Snowball samples are used to investigate groups that have some unique, rare or unusual quality in which members know each other through an organization or common experience. जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया कॉमन एक्सपीरियंस के बारे में कि all of these people X, Y, Z they were suffering from diabetes, right? So they knew each other because they were encountering the same issue and none of the previous doctor or anyone were helping them. Then they tried me and then they were definitely हैप्पी अबाउट देयर एक्सपीरियंस कि हाँ ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो अब इसमें जैसे मैंने बताया स्नोबॉल सैम्पलिंग जो ये यूज़ करी जाती है. अब ये स्नोबॉल का डायग्राम है, जैसे दो आई होप इट ड्राइंग थोड़ा आपको क्लियर होता है. स्नोबॉल स्टार्ट होती है छोटी से, वो नीचे जाती रहती है, तो ये बढ़ता रहता है. दैट इज द सेम वे योर सैम्पल साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट. तो ये सैम्पल साइज आपका बढ़ता रहेगा एंड इट विल गो ऑन एंड इट विल इंक्रीज बिकॉज वी आर रेफरिंग टू ईच अदर. तो इसको हम स्नोबॉल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्नोबॉल बोला गया. तो ये हमारे चारों सैम्पलिंग के टेक्निक से नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स मैं आपको बता चुका हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट. आई होप ये सबको समझ में आ गया हो कि क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्या एग्जाम्पल दिया था सर ने, क्या डायग्राम दिखाया था सर ने, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. यूनिक, रेयर और एक अनयूजुअल क्वालिटी, ठीक है. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, राइट, अगर आप नए हो चैनल में, अगर आपको अपनी एसेंशियल क्लेम करनी है ई बुक, ठीक है, ये हमारा एक ऑफर चल रहा है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. अगर आपको ई बुक क्लेम करनी है, इस ई बुक में आपका फुल सिलेबस कवर्ड है, राइट, फुल सिलेबस for unit 6 and there are other videos for other subsequent unit. What you have to do is contact on this number. Contact basically WhatsApp करना है आपको इस नंबर पे 9873907600. इस नंबर पे आपको WhatsApp मैसेज डालना है एंड देन यू हैव टू क्लेम योर फ्री ई बुक. और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके एग्जामिनेशन में पूरा सिलेबस कवर कर रखा है और ये एक्सपर्ट्स के इट हैज बीन रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स, राइट, कि आपके सिलेबस से कितना रेलेवेंट है. बिल्कुल रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन, फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए.
and that is how this makes it very important for you all to get this claim as soon as possible, because this is a limited time period offer. ऐसा नहीं है कि हमेशा चल रहा है, तो जल्दी जल्दी लो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये जल्दी से क्लेम कर लें, और उसके बाद आप पढ़ो। और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में, ओके। एंड सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सो जैसे मैंने बोला, इफ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपको? फर्स्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलता है। सेकेंड, आपको मॉक टेस्ट। सो इफ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, कहाँ पे जा रही है, और आप कैसे इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो आपको एक बार मॉक टेस्ट दे के देखो, अपने आप को एसेस करो। और यहाँ पे मॉक टेस्ट में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट में आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करे जाएंगे, राइट। सो दैट विल हेल्प यू अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। सो डाउनलोड कर लो टैलेंट ब्लेजर ऐप, फ्री चीज़ को डाउनलोड करना ज़रूरी है, और ये आपकी हेल्प ही करेगी एग्जामिनेशन में। सो देयर इज़ नो लॉस एट ऑल, राइट। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, एंड डू लीव अ लाइक। So that will be all for this video, and thank you all for joining.